आज से हम लोग इंसर्ट का चैप्टर नंबर जो है वो 6 पढ़ने वाले। इसके पहले हमने एसएससी का जो चैप्टर था स्क्वायर रूट्स और क्यूब एंड क्यूब रूट वो जो था वो पढ़ा था। नाउ शिफ्ट करते तो बीच में जो दो चैप्टर्स है, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 में इसके बाद भी लूंगा। सो यू नो आप एक की जो रिलेटिवली सेम चैप्टर्स है वो आपके एक के बाद एक हो जाएंगे। सो नाउ ये जो टॉपिक है ये काफी हद तक हम लास्ट ईयर सीख चुके हैं। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। नाउ व्हाट इज स्क्वायर? n square equals to m where n can be is an integer and m is a natural number such that now see 2 square equals to what? 2 into 2 equals to 4, right? Now minus 2 square equals to minus 2 into minus 2 equals to 4. Yeah, then 4 square equals to 4 into 4 equals to 16. Similarly, minus 3 square equals to minus 3 into minus 3 equal to plus 9. So now when two integer excluding 0 हम लोग जब लेते और उससे when we multiply to itself, what the result we get is the square of that number. Okay, मैं ये इंट्रोडक्शन थोड़ा क्विक कर रहा हूँ. So now यहाँ पे 4 is the square of 2. Now square root of 4 can be 2 or minus 2. Yeah. Then square root of 9 equals to 3. Square root of 16 equals to 4. Square root of 25 equals to 5. Yeah. So that what does it mean? Square of 5 is 25. Square of 4 is 16. Square of 3 is 9. Square of 2 is 4. Therefore, square root of 4 is 2. Square root of 9 is 3. Square root of 16 is 4. Square root of 25 is 5. Square root of 36 is 6. Square root of 49 is 7. So now यहाँ पे अगर हम लोग देखा जाए तो मैं एक टेबल अभी इसके बाद में बनाता हूं। आप इतना जो है वो पॉज वीडियो करके नोट डाउन कर लीजिए। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि ये प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर्स क्या है। देखिए 1 का स्क्वायर ये मेरा नंबर है, ये मेरा नंबर है और ये स्क्वायर है। आपको इतना याद रखना है कि आपको 30 तक जो स्क्वायर्स है वो आपको बाय हार्ट होने चाहिए। ओके, तो फिर क्या होता है कि आप जब भी कैलकुलेशन करते हो तो आपका कैलकुलेशन स्पीड जो है वो बढ़ जाता है। 30 तक आपको टेबल्स भी बाय हार्ट चाहिए और 30 तक आपको स्क्वायर भी बाय हार्ट चाहिए। तो स्क्वायर फाइंड आउट करना है या स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है तो आपका जो कैलकुलेशन स्पीड है वो आपका बढ़ जाता है और ये आगे जाके आपको हेल्प करेगा। So now number is a number. Square of 1 is 1. Square of 2 4. Square of 3 6. Okay. Square of 3 9. Square of 4 16. 5 25. 6 36. 7 49. 8 64. 9 81. 10 100. 11 121. 12 149. 13 169. 14 196 and then 15 225, 16 256, 19 17 289, 18 324, 19 361 और 20 400। तो यहाँ पे हम लोगों को ऑब्जर्व क्या करना है कि ऑलवेज इफ यू लुक एट द स्क्वायर द यूनिट प्लेस ऑफ अ स्क्वायर नंबर
number can be 1. आपको 2 कहीं नजर आ रहा है यूनिट प्लेस पे? नो. सो 2 इज नॉट. 3 कहीं नजर आ रहा है? नो. देन 4, 5 नजर आ रहा है? 5, 6, 256, 36, 196, 16. ओके. देन 7 कहीं नजर आ रहा है? नो. 8 कहीं नजर आ रहा है? 9 नजर आ रहा है? यस. 9, 289, 219, 169, 9, 49. और जो दूसरा नजर आ रहा है दैट इज 0. So if a number has a 0, 1, 4, 5, 6 or 9, it can be a perfect square. Whereas now the number with ending unit with 0, 1, 4, 5, 6, 9 can be a square number. See, I use the word can be a square number. I never said always a square number. Since, see, is 21 a square number? दिख रहा है 21. 21 will lies between 4 and 5. 21 is lying going to between two perfect square, 16 and 21. 16 is the square root of 4. 25 is the square of 5. So 21 इन दोनों के बीच में is there a number? No. So 21 is not a perfect square, though it has a unit place 1. Similarly, अगर आप देखो, is 24 a perfect square? No. Again, it lies between these two numbers. But if I say कि 299 या कोई भी नंबर है 298 is a perfect square. If I ask you a perfect square question, so now you know that its a unit place is 8. It cannot be a perfect square itself. You don't need to find it. Okay. So looking at the unit place, you can say whether this can be a perfect square or cannot be a perfect square. Okay. So what does it mean? The perfect square always have any of this digit in its unit place. What you need to understand? A perfect square. Now say if I ask you 3297, is this a perfect square? Without doing any calculation, you should be able to say no, as its unit place is 7. 7 cannot be unit place of a perfect square. It has to be 1, 0, 1, 4, 5, 6 or 9. It cannot be 7. It cannot be 3. It cannot be 8. It cannot be 2. So whenever you need to find out whether the number is a perfect square or not, you should be able to first scratch out the numbers which don't have unit place as 0, 1, 4, 5, 6 and 9. So now note down, pause the video and note down this. Now observe this set of number. यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर क्या है तो 1 है, 9 का स्क्वायर क्या है तो 81 है, 11 का स्क्वायर क्या है तो 121, 19 का स्क्वायर 361 एंड 21 का स्क्वायर 441. सो इसका मतलब क्या? इफ द स्क्वायर numbers in unit digit is 1, then it is square of a number whose
unit digit is either 1 or 9, राइट। सी यहां पे ऑब्जर्व कीजिए, 1 है मेरा यूनिट डिजिट, क्या है नंबर का 1, उसका स्क्वायर क्या आता है तो 1, मेरा नंबर क्या है 9, उसका यूनिट डिजिट क्या है 9, उसका स्क्वायर क्या आता है 81, माय नंबर इज 11, उसका यूनिट डिजिट क्या है 1, उसका स्क्वायर क्या हो गया 121, सो 19, मेरा नंबर क्या आता है स्क्वायर क्या आता है 361, 21 441। एक एग्जांपल करके देखते, लेट्स फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ 39 into 39. Okay, so now I'll do rough over here. 39 9s are 9 9s are 81, 9 3s are 27 plus 8 56, 250 27 plus 9 3s are 27, 27 plus 8 35. So my 1 is here and 35 is here. So now I multiply by 3. 3 9s are 27. 3 3s are 9 plus 11 plus 35. 7 5 7 plus 5 12, 5 1 5 1 5 2 is the square of 39. So मेरा यूनिट प्लेस क्या आ गया, गॉट इट। आप किसी भी नंबर जिसका यूनिट प्लेस 1 और 9 है उसका स्क्वायर का यूनिट प्लेस क्या होगा तो 1। इन सिमिलर मैनर एनी नंबर, सी 4 का स्क्वायर क्या है 16, 6 का 36, 14 का 196, 16 का 256। व्हाट डज इट मीन? इफ द नंबर, if the square number number's unit digit is 4, then it is square of a number whose unit digit is either 4 or 6। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? सो इफ आई आस्क यू टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ सम नंबर, या वेदर दैट नंबर इज अ कंप्लीट स्क्वायर और नॉट, सो यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई रफली एट फर्स्ट स्टेज। ओके, अगर मैं आपको कहता हूं कि नंबर जो है उसका 256 का स्क्वायर रूट निकालो, सो नाउ यू नो, सो व्हेन आई से फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 256, या फिर मैं यहां पे लिखता हूं एक मिनट के लिए। सी मैंने अगर आपको कहा कि 256 का स्क्वायर रूट निकालो, या सो पॉसिबल स्क्वायर रूट इसका क्या हो सकता है? सी 5 का अगर 20 का स्क्वायर क्या होता है तो 400, देन 19 का कितना होता है, दैट वे you will be able to find 11 का 120, 12 का 13 का 14 का। सो दिसका स्क्वायर रूट क्या हो सकता है? either 16, right, because the end digit is a 6, the square root must have a unit digit as a 6, got it? So आप जब चेक करते हो, so if I say find square root of 256, so firstly what you will see whether this is a perfect square or not. Since the unit digit is 6, that means this can be a perfect square. Now to find the perfect square, I am not going to multiply by straight away, either it should be a 14 or it should be a 16, as the unit place either 4 or 6, then only the square unit place will be 16. Got it? So this logic what we are, rules what we are studying, that will help us to quickly find the square root of a number.
ओके, सो पॉज द वीडियो और नोट डाउन कर लो। अभी देखो, स्क्वायर ऑफ 10 इज इक्वल टू हाउ मच? 100। स्क्वायर ऑफ 100 इज इक्वल टू 10,000। स्क्वायर ऑफ 200 is equal to 40,000. Square of 3,000. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Right? Now square of 900. 81, 1, 2, 3, 4. सो इफ यू ऑब्जर्व, अगर आप ठीक से करते हो तो यहां पे मेरा सिंगल डिजिट जीरो है। यहां पे जब मैं स्क्वायर कहता हूं इट बिकम्स अ ट्वाइस ऑफ इट। पता चल गया? यहां पे जीरो कितने थे? एक था। मेरा स्क्वायर में जीरोस कितने आ गए? 2। यहां पे कितने थे? 2। मेरे स्क्वायर में जीरोस कितने आ गए? 4। यहां पे थे 2, स्क्वायर में आ गए 4। यहां पे थे 3, स्क्वायर में आ गए 6। यहां पे थे 2, स्क्वायर में आ गए 4. So whatever number of zeros you have, they become double in number in their squares with the natural number. See, now if I say 1100 square, how is going to be? 11 का square 121. 1, 2, 3, 4. Right? See, ये नंबर का मेरा ये स्क्वायर हो गया and these are the numbers of zeros, exactly number of double. If I say square of 12,000, that means what? 144 into 1, 2, 3, 4, 5, 6. Number of zeros 3. Number of zeros 6. एक्चुअली इसको अगर हम लोग देखें 12,000 मीन्स व्हाट? 12 into 1000. हम लोगों ने लास्ट ईयर इंडाइसेस में ये रूल सीखा था, 12 into 1000, राइट? दैट मीन्स वो रूल क्या था हमारा? रूल ये था, a into b ब्रैकेट स्क्वायर और रेस टू एनीथिंग इक्वल्स टू a रेस टू स्क्वायर into b रेस टू स्क्वायर। बराबर है? नाउ 12 into 1000, ये ब्रैकेट स्क्वायर मतलब क्या हो गया? 12,000 कैन बी रिटन एज 12 into 1000. सो दैट इज इक्वल टू ब्रैकेट स्क्वायर। ब्रैकेट स्क्वायर मतलब क्या? 12 स्क्वायर into 1000 स्क्वायर। देयरफॉर 12 का स्क्वायर कितना हो गया? 144 into 1000 का स्क्वायर कितना हो गया? 1 with the 6 zeros. नाउ 144 इंटू ये नंबर क्या हो गया? तो 144 एंड देन 6 zeros, 1, 2, 3, 4, 5, 6. समझ में आ गया कि ये कैसे कैलकुलेट हो रहा है? Got it? So now whatever the number of zeros in the number, its square becomes will have a double its zeros. अगर 1 है तो 2, 2 है तो 4, 4 है तो 8, 8 है तो 9, 8 है तो 16. यू नो व्हाटएवर नंबर ऑफ जीरोस नंबर में उसके स्क्वायर में उसके डबल नंबर ऑफ जीरोस होगी। ओके, पॉज करके नोट डाउन कर रहा हूं। अभी हम लोग देखेंगे नंबर्स बिटवीन द स्क्वायर नंबर्स। नाउ सी, 1 का स्क्वायर है एंड देन 2 का स्क्वायर है, तो इसमें क्या हो गया? 1 का स्क्वायर 1 एंड देन 2 का स्क्वायर 4. तो इनके बीच में नॉन स्क्वायर नंबर कौन कौन से? तो 2 and 3, राइट? फिर हम लोग 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर करते, तो 2 स्क्वायर क्या हो गया? 4 और 3 स्क्वायर 9. तो इनके बीच में नॉन स्क्वायर नंबर कौन से? 5, 6, 7 and 8. देन 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर के बीच में नंबर क्या आएंगे? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16. सो नाउ अगर मेरा ये नंबर, तो ये फॉर्मूला मैंने ऐसा कर लिया, n स्क्वायर
n+1 स्क्वायर अगर करते तो इन दोनों के बीच में कितने नंबर आते? तो 2n नंबर कम्स इन बिटवीन। ये फॉर्मूला कैसा है देखिए, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स कॉन्जिक्यूटिव नंबर आते हैं, तो दैट अपोजिट हम लोग ये जो बड़ा नंबर है उससे छोटा नंबर माइनस कर लेते, तो विल फाइंड द इन बिटवीन नंबर, राइट। हाउ मेनी नंबर, हाउ सी 6, 5 और 4, 5 और 3 के बीच में कितने नंबर आते, तो व्हाट वी डू, डिवाइड सबट्रैक्ट 2 from 5 and it comes out to be 3. So we have 2, so we have 3, 4 and -1, so 5 number आ गए। In similar relation यहाँ पे 2n is the numbers we non-square numbers we get between these two numbers. So let's check this formula. मेरा n equal to क्या हो गया, 1 है, right? How many numbers are there? 2. 2n, 2 into n equals to 2 into 1 equals to 2. यहाँ पे मेरा n क्या है, 2. So 2 into 2 equals to 4 numbers. How many numbers are there? 1, 2, 3, 4. Then 2 क्या है मेरा, n क्या है मेरा, 3. So 2 into 3, that should be 6 numbers should be between square, these two square, 1, 2, 3, 4, 5 and 6 number. So if I say 7 square minus 8 square, so there will be how many numbers will be between these two square? How many numbers? How many numbers will be between 7 square and 8 square, या फिर मैं 9 square भी कर लेता हूँ, 9 square and 10 square, easy, okay, 9 square and 10 square. So the total मेरा n क्या है, 9. So 2 into 9, 2 into 9, so there will be 18 non-square numbers between square of 9 and square of 10. पॉज करके नोट डाउन करो।